good evening. Good evening, everyone. Good evening. So, welcome once again for the session of Shastra. And hello, Dilkash. Hello, good evening. How are you? All well? Everything is fine? Okay. So, first, everyone, just please confirm that hello, Nikhil. Hello, good evening. The audio, video, and the shared screen. Everything is fine, visible for you. Okay, I got a mail. Okay. Hello. So just a minute, Dilkash is saying. Okay, Dilkash, okay, not to worry. I'll discuss with the head office, right? I'll discuss with the head office. Right. So I suppose everyone is having the study material which you must have received from the head office of Shastra, right? And if you are not having the books, the PDF copy of the books from the head office. Okay, Dilkar. So I'm just discussing the same thing. So if you're not having the books, the PDF copy of the books, or if you are not getting the recordings of the session, or if your test portal is not active, right? The online test portal of Edishastra is not active. So for all these queries, for all these concerns, what to do? Just write a email at support@edushastra.com, right? Mentioning your concern that you are not having the books, you're not having the online test portal, or maybe you're not receiving the recording, right? Because all these admin part will be controlled and operated by the head office teams, right? And uh, okay, Astha. Okay, so I'll just discuss with this also, right? I'll just discuss. Okay, Dilkash, right? I'll just discuss. So now, second thing, whatever the files, whatever the study material I am sharing here in the class, right? So you will be getting the emails for the Google Drive link, okay? And you can download all these class PPTs from the Google Drive, right? So there will be a no concern, no issue that the net is not working or something like this, right? So Google Drive link will be there and this will be shared by the head of the team. Okay. So I suppose everyone is revising the concepts, everyone is solving the questions, practice question, doing the test paper, right? And these things are very, very important, right? Solving the test paper, revising the concepts, right? So do not pile up every week. I suggest write a one test, right? And this will be helpful to understand the concepts as well as the say speedy solution of the questions, right? You will be able to solve the questions fast, right? Now, so there is a Astha, okay. So I suppose there are some of the students who are joining, right? They are new in the system of EduShastra. So what we have here, we are having we are having the classes, the session on a roll on basis, like cyclic basis. Okay. So you just note down the entry point of yours. Okay. The topic at which you are entering into the system. And then you will be going down, completing all the topic one by one. And when you are coming back over the same topic, you will be completing a syllabus cycle, right? So in this manner, no person, not a single person will be like missing anything, any concept, any lecture, nothing, right? You will be attending, you will be getting all the concepts, all the lectures, all the classes for you, right? But this is for individual person, right? Because someone can enter early, someone can enter late, right? So this is the system of Adishastra, right? So Swapnil,
what I suggest, every week everyone should write a topic test, right? And in the 15 days of time, write the full length test, right? So everyone should write the full length test every week, every 15 days or 10 days, right? Okay. Now starting with this part. Uh, yes, Swapnil, we are very shortly starting with the LRDI part also, right? Not to worry. So the head office team is working over Hello. the updated material, right? And they will be discussing and sharing all the timetable with you very short, right? Okay. So yes, Asa. Full length means the complete mock test, right? Full length means the complete mock test. Okay. The target exam which you are having, maybe the CAT, GMAT, SET, IFT, whatever. So write the complete full length test based on your target exam pattern. Okay, including all the sections which are there in the examination. Okay, right. So now let's start. Let's begin with this part. Aman, you will get the schedule for LRDI, for the verbal, everything very shortly, very soon, right? So, Lakshita, see, full length test, this means you will be waiting, if you complete the topic first, so you will be waiting approximately like for the 3 months, right? And my suggestion is start writing the test, full length test, and this does not mean that you just write the test and put on the other side of the table, right? This means that you should write the test and repeat the test after every 15 days, right? Okay. So, Shithal, so just use the headphone, right? Audio, I suppose, is not low. Just use the headphone. So, analysis, Lakshya is there, right? Analysis is there in the system. When you write the test, the analysis will come and you can have your performance, right? So all these things will be there. So as the repetition of the test is compulsory because this will help you to understand the concept, this will help you to recall the concepts, right? And this will help you to make, to design your own shortcuts for the concepts, right? Your own shortcuts for the concept. Okay. So, Swapnil, this is the reason I am saying that repeat and revise. Okay. Okay. Yes, we are also having the shortcut here, and I'll discuss some of the shortcut here. So, shortcuts are related to the topic, right? So, we will be having shortcuts related to the topic, right? Okay. So, all these things, right? Everyone should write a mail to the head office support@edushastra.com, right? Now, so starting with the average mixtures allegation. As I suggest that we are having some topics which are there in the arithmetic part, percentage, ratio and proportions, simple interest, compound interest, right? Average mixture allocation. So these are the some topic where you will find maximum number of questions in the examination. And all these topics you're doing since the class of maybe 6 or 7, right? So 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, right? Around 6, 7 years you have done all these topics, right? Percentage, ratio, proportion, time and distance, time and work, simple interest, compound interest, average, mixtures, allegation, right? And maximum part of all the competitive examinations are from these topics. And these are the topic where we are having a maximum type of shortcut, fast calculation, and easy calculations, right? So now starting with this part, that is average, mixtures, and allegation. And in this, I'll discuss some of the shortcut, right, which are applicable here. Okay. So average, very simple term, very simple to use, right? I suppose everyone is having a very good understanding for the term average.
right? So the average is what we are having the simple. If I say find the average, so average salaries, average number of students, average marks, right? So all these are what? These are average. So in this, we are typically having arithmetic average, or we are saying arithmetic mean. We are having geometric mean or geometric average, and we are having the harmonic mean or harmonic average, right? Now, in this session, we will concentrate over this part, that is arithmetic mean or arithmetic average, right? Geometric mean and harmonic mean we will discuss in the statistics, right? So you can just go over the YouTube channel of Shastra and you can find the video for the statistics, right? Okay, done. So here I'm just going to discuss the first part, that is arithmetic average. So arithmetic average is very simple to use. This is what, if I say number of observations, if I have, right, and we are having a different reading, so you can say the average is in a class, average salaries of the employees, average sales of a one product, average production of the some product, right? So all these things are what average, and in this what we do, we are just doing the sum of the observations, right? Sum of the observations divided by the counting of the observations. So suppose if I am having a two values, so what to do? This is A plus B divided by 2. Simple, right? That is sum of the values divided by what? Number of the values. Now suppose if you are having a three readings, three observations, so what to do? A plus B plus C divided by 3, right? That is what? Sum of the observations divided by the counting of the observation. So very simple thing, very simple to use, very simple to calculate, right? Now, so building up the concept of the mixture and alligation over this average. तो इसके ऊपर हम जो है एवरेज को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि एवरेज क्या है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज से कैसे रिलेटेड है, कैसे हम एवरेज से मिक्सचर एलिगेशन तक जाते हैं, है ना? ओके, सो नाउ कम टू दिस पार्ट. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट? सो स्टार्टिंग विद just simple general understanding. Average weight of a batch of 16 students is 45 kg. Two students of weight 69 and 57 kg join. तो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. What is the new average, right? So I suggest to everyone, as you are like just understanding the concept, so whatever the way, जिस तरह से भी है आप आंसर करो, right? टेक अ पेन एंड पेपर, सॉल्व करो, पार्टिसिपेट करो सेशन में, राइट? सही गलत जैसा भी है, बट आई सजेस्ट आंसर जरूर से करो, राइट? कंपल्सरी आंसर करो, एंड यू कैन टाइप इन योर आंसर इन द चैट बॉक्स, राइट? सो आई सजेस्ट टू एवरीवन, एवरी पर्सन जो भी अभी यहाँ पे है सेशन में, क्लास में, राइट? Every person should give me some answer, right and wrong doesn't matter, but every person should give me an answer. एक क्लास है, ओके लक्ष्य, ओके 16 स्टूडेंट है, जिनका एवरेज 45 केजी है. दो नए बच्चे क्लास में ज्वाइन करते हैं जिनका वेट 69 एंड 57 केजी है. देन व्हाट इज द न्यू एवरेज? सजल, नो, नॉट दिस, नॉट दिस. Yes, Shuda, yes, Saurabh, yes, Raghav, yes, Aman, yes, Sonam, yes, Shashank, yes, 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 very good participation. But I suggest still there are many persons who are not giving any answer, any participation here. Swapnil, just check once again. Uh, Sheethalsi, okay, Sheethalsi, right? So yes, correct. Akash, yes, correct.
So Swapnil, how is this your answer? 49. Akanksha, no, not this. So all these things, Sajal, I discussed towards the end. First, concentrate over the concept, right? So notes you will get, but now don't confuse yourself, right? Just concentrate over the concepts and the questions. Yogesh, yes. Okay. So Swapnil, how is this your answer? 49. Okay. Now correcting the answer, Lakshita. Okay. Right. Okay, Aditi. Okay. So, Aditi, how is this answer? How are you solving this? Hello? Hello, sir. Yes. Sir, there are 16 students. So what I Mm-hmm. did was I multiplied 16 by 45 and I got the whole total average of 16 students, and I Mm-hmm. added the two more extra students weight, and Mm-hmm. those two, by adding up, it makes 18 students. By Okay. adding all those weights, I divided it by 18, so I got 47 kgs. Okay. Okay. So basically, what Aditi is doing, Aditi ने क्या किया यहाँ पे जो अभी हमने सिंपल सा एक डेफिनेशन डिफाइन किया था एवरेज का, that is sum of the observations divided by the counting of the observation, है ना? तो अभी अगर मुझे क्लास के लिए एक नया एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? दिस इज द एवरेज, राइट? यस दिलकश, यस यस. सो अभी कितने बच्चे हैं? 16. सो 16 और इनका एवरेज कितना है? 45. सो 16 इंटू 45. ये क्या हुआ? क्लास का टोटल सम आ गया, जितने भी बच्चे हैं उनका टोटल सम आ गया, है ना? नाउ अब क्या करते हैं, दो बच्चे क्लास में ऐड करते हैं, तो इनका वेट कितना है? 69 एंड 57. ये हम इसमें ऐड कर दिया, तो टोटल बच्चे काउंट हो गए, उनका टोटल वेट आ गया. अब क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल क्लास में 18 बच्चे हैं. 18 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा? दिस इज 47 kg, है ना? सो इजी क्वेश्चन, सिंपल, राइट? बट अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? जहां पे स्पीड बहुत मैटर करती है ना? जितना हम फास्ट सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी मैं सॉल्व करूंगा और उतना ही मैक्सिमम मेरे अटेम्प्ट्स होंगे. अटेम्प्ट्स ज्यादा होंगे तो मेरा कट ऑफ भी अच्छा आएगा, मेरा स्कोर भी अच्छा आएगा, राइट? ये स्कूल में तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि हमें सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं, मेरे को एक फाइनल ऑप्शन लेना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन आएगा, राइट? ओके. सो अदिति, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. राइट, यही आपने किया, इस तरह से सॉल्व किया था, Exactly. राइट? ओके. अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि जो एवरेज है, राइट? नाउ एवरीवन जस्ट कंसंट्रेट एंड लिसन केयरफुली ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, राइट? नाउ जो एवरेज है, कैन आई से एवरेज इज व्हाट? अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ द एंटायर ग्रुप, है ना? क्लास में क्या Yes. होता है ना? क्लास में क्या Mhm. होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, राइट? अगर हम सपोज एवरेज एज की बात करते हैं या एवरेज वेट है या एवरेज मार्क्स हैं, तो किसी बच्चे के मार्क्स जो है 70 हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 45 हैं, किसी के 30 हैं, है ना? बट अगर मैंने बोला कि क्लास का एवरेज मार्क्स 60 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे 60 मार्क्स पर होंगे, कुछ बच्चे 60 से ज्यादा मार्क्स पर होंगे और कुछ बच्चे 60 से कम मार्क्स पर होंगे, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बच्चों का जो एवरेज है, एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव नंबर कितना आता है? 60 आता है, राइट? यस Yes. आदिति, Yes. राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि क्लास में कितने बच्चे हैं? 16, और इनका एवरेज कितना है? 45. तो आई कैन से, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 16 बच्चे हैं उनमें से कुछ 45 से ज्यादा होंगे, कुछ 45 से कम होंगे, और हो सकता है कुछ एग्जैक्टली 45 भी हो, बट सबका एवरेज मिला के 45 आ, राइट? तो मैंने मान लिया कि हर बच्चे का वेट कितना है? 45 है, बिकॉज एवरेज 45 kg है.
ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि जो दो नए बच्चे क्लास में ऐड होते हैं, है ना, यस अदिति, राइट, जो Yes, दो yes. नए बच्चे क्लास में ऐड हो रहे हैं, अगर इनका वेट भी अगर इनका वेट भी 45 केजी होगा, तो क्या क्लास का एवरेज चेंज होगा? नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं होगा। है ना, नहीं होगा ना अमन। नाउ एवरीवन जस्ट लिसन केयरफुली। अगर जो दो नए बच्चे क्लास में ऐड होते हैं, अगर इनका भी वेट 45 केजी है, राइट, इन तो दोनों का क्या भी क्लास का एवरेज चेंज होगा? नहीं होगा, वही। नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि जो दो नए बच्चे क्लास में ऐड हो रहे हैं, उसमें से पहले बच्चे का वेट कितना है? 69 केजी, है ना। तो जो अभी क्लास का वेट है, एवरेज वेट है 45, तो 45 से 69 कितना ज्यादा है? 24 24 24, kgs. राइट। तो ये जो बच्चा क्लास में ऐड होता है, ये 24 केजी एक्स्ट्रा वेट लेकर आ रहा है ना, 24 केजी एक्स्ट्रा वेट लेकर आ रहा है। जो दूसरा बच्चा है, उसका वेट कितना है? 57 केजी। इसका वेट जो क्लास का एवरेज 45 है, उससे कितना ज्यादा है? 12 kgs more. 12 12 केजी। केजी, राइट। ये 12 केजी हो गया। अब ये दो बच्चे जब क्लास में आते हैं, तो आई कैन से कि ये टोटल यहाँ पे 36 केजी एक्स्ट्रा वेट क्लास के अंदर लेकर आ रहे हैं, है ना, Exactly. राइट। ये टोटल 36 केजी क्लास के अंदर लेकर आ रहे हैं। अब जब ये क्लास का पार्ट बन जाते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट है 36 केजी, ये क्या होगा? सब बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, है ना, सब Yes. बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी क्लास में कितने बच्चे हैं हमारे पास? 16 बच्चे हैं। दो नए बच्चे और ऐड हो गए, तो टोटल बच्चे क्लास में कितने हो गए? 18. 18, है ना। अब 18 बच्चे क्लास में हैं और क्लास के पास एक्स्ट्रा वेट कितना है? 36 केजी। और हर बच्चे को बराबर बराबर मिलेगा, बिकॉज हम एवरेज कर रहे हैं, है ना। तो अगर 18 बच्चे क्लास में हैं और मुझे 36 केजी वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर बच्चे को कितना कितना वेट देंगे? 36 divided by 18. 36 डिवाइडेड बाय 18, है ना। सो 36 डिवाइडेड बाय 18, तो आई कैन से हर बच्चे को कितना वेट मिल जाएगा? 2 केजी 2 का। kgs. अभी क्लास का एवरेज कितना है? 45 plus 45। 2. हर बच्चे 47. को मैंने 2 केजी और वेट दे दिया, तो प्लस 2 कितना हो गया? 47 47. राइट। अब ये देखो डिफरेंस जो आपने किया था और जो मैंने किया है ना। आप क्या कर रहे हो? 16 इंटू 45, एक बड़ा सा 4 डिजिट का नंबर आ गया, है ना, यस और नो, राइट। Yes, 16 sir. इंटू 45 एक बड़ा सा नंबर आ गया। उसमें फिर एडिशन करो 69 का, 57 का, और भी बड़ा कर दिया आपने, और भी नंबर इंक्रीज कर दिया। और फिर क्या कर रहे हो आप? 18 से डिवाइड कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, एडिशन भी कर रहे हो, डिवीजन भी कर रहे हो, तब जाके कहीं हमें आंसर पता चलता है ना। बट अभी मैंने क्या किया, जो हम शॉर्टकट की बात कर रहे थे, है ना, तो जो मैक्सिमम शॉर्टकट बनते हैं वो इस अरिथमेटिकल पार्ट में बनते हैं। बट मेरे को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझना होगा। जो मैंने आपको बोला कि जो एवरेज है, एवरेज क्या है? यस सजल, नाउ कंसंट्रेट। एवरेज इज व्हाट? अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ द ग्रुप। कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ एग्जैक्टली एवरेज के बराबर होते हैं, है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि क्लास का एवरेज कितना है? 45। अब एक बच्चा आता है, उसका वेट कितना है? 69 केजी। तो वो इस क्लास के अंदर 24 केजी एक्स्ट्रा वेट लेकर आ गया, है ना। दूसरा बच्चा आता है 57 केजी, वो क्लास के अंदर 12 केजी एक्स्ट्रा वेट लेकर आ गया। दो बच्चे आते हैं, वो टोटल 36 केजी एक्स्ट्रा वेट लेकर आ जाते हैं। अब क्लास में पहले से 16 थे, दो बच्चे ऐड हो गए, तो टोटल 18 हो गए। और क्लास के पास में अभी 36 केजी एक्स्ट्रा वेट है ना। Sir, excuse me, sir. यस यस। Sir, what if जो 2 extra बच्चे आ रहे हैं उनका वेट 45 kgs के बिलो हो?
आते हैं, अभी उस पे भी आते हैं, सारे अप्स एंड डाउन, सारे इफ एंड बट करेंगे, चिंता मत करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम आधे कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे ही डिस्कस करेंगे, राइट, Okay, डोंट sir. वरी, है ना। बट हाँ, ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है, इफ एनीवन फील कि कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट स्किप हो गया है, तो जस्ट रिमाइंड, राइट। बट ऐसा नहीं होगा कि हम मिस करेंगे, राइट। इसको भी हम करेंगे कि अगर उसका वेट कम होता है तो क्या करेंगे, है ना। ओके, ना, तो अब क्या हुआ, 36 एक्स्ट्रा केजी एक्स्ट्रा वेट हो गया, है ना। 18 बच्चों में मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर बच्चे को कितना कितना मिलेगा, 2 2 kg। 45 तो वेट पहले से था, अभी 2 kg और हर बच्चे को मिल गया, तो टोटल वेट कितना हो गया एवरेज, दैट इज 47 kg, है ना। तो लॉजिकली सॉल्व करो, आप क्या कर पाओगे, आप वर्बली सॉल्व कर पाओगे, आपको राइटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई सपोज कि अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं, है ना, ये वाला जो मेथड है, तो आई सपोज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इवन एनीथिंग ऑन द पेपर। यस, एम आई राइट और रॉन्ग इन दिस? मैंने सही बोला कि क्या आप इसको लिख के करोगे क्या? नो सर। नो, नथिंग, राइट, इसमें जरूरत ही नहीं है लिखने की, तो या? चलो, तो अभी जैसे अदिति ने पूछा था, तो हम आते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे, इसका अगर अपोजिट होता है तो क्या होगा, है ना। नाउ रीड दिस केयरफुली एंड आई सजेस्ट everyone should participate in the session, okay, but no use of pen and paper or calculator, right। कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, दूर रख दो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। और अगर पेन एंड पेपर नोटबुक भी आपने ली हुई है ना, तो उसको भी हटा दो, दूर कर दो। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस हियर इन द माइंड, राइट, ओके। हो सकता है अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, ऐसा इसमें यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है कि फर्स्ट कौन आ रहा है, राइट, कोई कंपटीशन नहीं है। आई वॉन्ट एवरी वन शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। So average savings, okay Raghav, okay, average savings of a group of 22 people is rupees 30,000, okay. Two people with savings of rupees 42,000, and Aman, no Aman, just take care, read the question carefully Aman. Saurabh, no, just check your calculation. Lakshya, check your calculation. Two people with saving of rupees 42,000. Yes, Akash. Akash Chaudhary. Yes, Akash. No. Akash, just read the question carefully. 42,000 and 54,000 leave the group, right? Yes, Swapnil. Yes. What are the average savings now? Right? So, just रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हर वर्ड को ध्यान से करो। यशोदा, यस। श्रीथलसी, नो, नॉट दिस, नॉट दिस, जस्ट चेक योर कैलकुलेशंस। योगेश, नो, नॉट दिस, यस योगेश, यस, करेक्ट। अमन, नॉट। शैलजा, नो। ईशा, यस। सो हेलो शैलजा, हेलो। Yes, sir. How is this your answer? First tell us what is your answer. Sir, 24,000. Okay, how is this? Sir, the two peoples of saving 42,000 and 54,000 leave the group. So, like, oh, sorry, I deducted it. Sorry. Okay, Uh, okay. Yeah, I got it where I Just made a mistake. just check. Yeah, Yes, just check. yes. एंड आकाश, नो, अभी भी जो है सही आंसर नहीं है आकाश, ये ध्यान से करो आकाश। ओके, एंड ओके, हेलो शशांक। हेलो सर। यस, सो कितना आंसर है, वो उसका आंसर? हर्षिता, नो, नॉट दिस, नॉट दिस। सर मुझे 28,200 आया सर। ओके, कैसे?
सर एक्चुअली मैंने आपने जो मेथड बोला उससे ट्राई किया, मुझे एक्चुअली 30,000 के ऊपर आ रहा था। बाद अच्छा, में मैंने ओके। लाइक नॉर्मल मेथड से किया, लाइक 30,000 इंटू 22, बाद में 42,000 और 54,000 प्लस करके डिवाइडेड बाय 20 कर ओके, दिया। ओके। चलो तो एक बार हम आप साथ में मिलके सॉल्व करते हैं इसको, राइट? ओके सर। ओके। तो अभी जैसे शशांक ने बोला एंड आई थिंक काफी लोगों ने जो सॉल्व किया है वो क्या सॉल्व किया है, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कितने पर्सन है 22, इनका एवरेज सेविंग्स कितना है 30,000, सो 22 इंटू 30,000, ये हो गया टोटल सेविंग्स, है ना? नाउ अभी इसमें से क्या हो रहा है कि दो पर्सन ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, राइट? रीड दिस केयरफुली, लीव द ग्रुप। ओके, दिस इज नॉट ज्वाइनिंग द ग्रुप, दे आर लीविंग द ग्रुप। तो क्या करेंगे, दिस इज माइनस हाउ मच, कितना 42,000, एक पर्सन बाहर हो गए, एंड माइनस कितना 54,000, ये दूसरे पर्सन ग्रुप से बाहर चले गए, है ना? अब टोटल पर्सन कितने थे 22, दो लोग तो बाहर चले गए, ग्रुप में कितने लोग रह गए 20, है ना? तो क्या करते हैं, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? यही किया शशांक, यस सर, ये भी। राइट? तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, अब देखो क्या करोगे, मल्टीप्लाई किया, है ना, बड़ा सा नंबर आ गया 30,000, वैसे ही जो है ये 5 डिजिट का नंबर है, 22 से और मल्टीप्लाई किया, है ना, उसमें से 42,000 54,000 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, एंड उसके बाद में फिर 20 से डिवाइड भी हो रहा है ना? तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सारा ही जो है कैलकुलेशन का मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया, राइट? हाँ सर, बहुत बट टाइम कंज्यूम होता है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, और काफी सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें कैलकुलेटर भी नहीं होता है, तो अगर पेन पेपर पे कर रहे हो तो भी जो है टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेटर भी मिलता है तो भी ऑन स्क्रीन होता है तो भी उसमें टाइम लगेगा। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई सपोज एवरीवन मस्ट बी गेटिंग आंसर कितना, रुपीज 28,200, है ना? ये आ रहा है ना सबका आंसर? यस, यस सर। है ना? अब देखो Yes, इसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ओके, सिंपल सा है, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सारी चीजें जो है सॉल्व करेंगे। एवरेज है, मतलब क्या होगा कि जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो नंबर दिया है वो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। तो अगर 22% है, 30,000 का सेविंग है, तो मैंने मान लिया कि हर पर्सन का 30,000 का सेविंग है ना? एक्चुअल में क्या होगा, कुछ लोगों का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, कुछ का 30,000 होगा, बट मैंने क्या मान लिया कि सबका 30,000 का सेविंग है। अब देखो दो लोग ग्रुप से बाहर चले जाते हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूं, एवरीवन शुड आंसर, कि ये जो 2% बाहर जाते हैं, है ना, अगर ये ग्रुप से 30,000 लेकर जाएंगे, है ना, ध्यान से सुनो, अगर ये ग्रुप से 30,000 लेकर जाएंगे, तो क्या ग्रुप के एवरेज पे कोई चेंज आएगा? नो सर। कोई चेंज नहीं आएगा, नो। राइट? बिल्कुल, है ना? ये चीज समझ में आ रही है ना? अब क्या हो रहा है, एक पर्सन है जो 42,000 लेके चला जाता है, तो ये ग्रुप से कितना एक्स्ट्रा लेके चला गया? 12,000। 12,000। है ना, ये 12,000 लेके चला गया। दूसरा पर्सन है जो 54,000 लेके ग्रुप से बाहर चला जाता है, ये कितना एक्स्ट्रा लेके चला गया? 24,000। 24। 24,000। राइट, ये 24,000 लेके चला गया। तो इस तरह से दोनों पर्सन मिला के टोटल कितना 36,000। 36,000, है ना, ग्रुप से लेकर बाहर चले गए, है ना? अब जब ये दो लोग एक्स्ट्रा 36,000 ग्रुप से लेकर चले गए, तो ये दिया किसने है, किसने दिया होगा ये? Remaining 20%. रिमेनिंग 20%, रिमेनिंग यस, 20% वेरी को गुड, डिवाइड करके दिया। यस यस यस, जो रिमेनिंग 20% है उन्होंने अपने पास से दिया, है ना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा लेके चले गए। तो अगर जो रिमेनिंग 20% है वो ये 36,000 देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर पर्सन कितना देगा, 36,000 डिवाइडेड बाय कितना कर दें, 20। 20, तो कितने रुपीज आ गए, 18।
1800, राइट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बाकी के 20 लोग ग्रुप में रह गए हैं, है ना, 20% जो ग्रुप में बचे हैं, हर पर्सन ने कितना कितना दिया, 1800 दिया, है ना। अब क्या होगा, उनकी तो सेविंग कम हो गई। पहले वो 30,000 सेव करते थे, अब उनको 1800 देना पड़ गया, तो सेविंग कम हो गई। तो अगर 1800 दे दिया तो क्या करेंगे, 30,000 माइनस कितना, 1800, 1800, कितना आ जाता है ये, 28,200. 28,200। और ये क्या हो गया, 200. 28,200, और ये क्या आ गया, ये नए सेविंग आ गई ग्रुप, है ना। तो ये देखो, अगर हम लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं तो हम वो बड़े बड़े नंबर्स को नहीं कर रहे हैं, हर स्टेप पे अपने नंबर्स को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, इजी बनाते जा रहे हैं, और हर स्टेप पे कैलकुलेशन इजी होता जा रहा है ना। ओके, तो उन्नति, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास में 22% है, उनका जो टोटल सेविंग है वो कितना है, 30,000। ग्रुप से दो लोग बाहर चले गए, है ना, तो वो कुछ एक्स्ट्रा मनी लेके चले गए, कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया। तो पहले पर्सन ने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 12,000। दूसरे ने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 24,000। टोटल दोनों ने मिला के 36,000 एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा लेके वो चले गए, ये किसने दिया होगा, जो पीछे 20% रह गए, ग्रुप में जो बाकी 20 लोग रह गए वही देंगे। तो अगर 20% ने टोटल 36,000 दिया, तो हर पर्सन ने कितना कितना दिया, 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज, है ना। पहले वो सेविंग कितना करते थे, 30,000 का, अब उनका सेविंग कम हो गया, कितने से कम हो गया, 1,800 रुपए, 1,800 से कम हो गया। तो अभी सेविंग कितना करेंगे, 28,200 करेंगे, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, ये आया एवरेज का पार्ट समझ में अच्छे से सबको, Yes, sir. है ना। तो जो ये पार्ट है ना, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे, जहां पे हम वेटेड एवरेज या एज्यूम्ड एवरेज या मिक्सचर्स और एलिगेशन रिप्लेसमेंट, है ना, वो वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो एवरेज के बाद जो मेजर थिंग है, दैट इज द वेटेड एवरेज। एक बार जरा मेरे को समझाओ कि क्या होता है वेटेड एवरेज। आई सपोज सभी ने नाम सुना होगा, सभी ने जो है पढ़ा भी होगा कि वेटेड एवरेज क्या होता है ना। सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज वेटेड एवरेज, क्या करते हैं हम इसमें, वेटेड एवरेज क्या है। Sir, am I audible? यस यस राघव, यस। So, sir, it's average based on priority. For example, in our college, when we were in college, we had different credits for that राइट, यस subject. यस, And now, for example, maths credit was higher, and some other co-curricular activities credits were lower. राइट, So, whichever marks we used to get, we used to multiply with that credit. right, Other right. example is like we are mixing something, mixing two liquids in some ratio. So and then we want another percentage of it. So in how much quantity do we add different composition of liquid? That is a Right. weighted average. राइट, यस यस, वेरी गुड। और यस, योगेश ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, सेंसेक्स। आई सपोज आप फॉलो करते हो सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या निफ्टी है, बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या एनएससी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो आई सजेस्ट, बिकॉज सभी लोग जो है मैनेजमेंट के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल टर्म्स है, ये सारी चीजें भी फॉलो करो। एंड अगर थोड़ा सा आप जैसे न्यूज वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो कल कल पार्लियामेंट में जो है, पहले जो मैडम प्रेसिडेंट है, मैडम मुर्मू, उनका जो है स्पीच है, एक कंबाइंड दोनों हाउसेस के साथ में। और उसके बाद में जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो प्रेजेंट होगा कल। एंड वेडनेसडे को जो इस बार का जो बजट है वो प्रेजेंट होगा, राइट। यू फॉलो ऑल दीज informations, right? So just please follow all these financial news, financial terminology, right?
वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। और जो स्टॉक मार्केट है ना, उसको थोड़ा सा रीड करना, थोड़ा सा समझना शुरू करो। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया योगेश ने। एंड अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझे वेटेड एवरेज, तो देखो जैसे अभी राघव ने बोला कि हम लोग कॉलेज में है ना, आपके पास में थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। आपके पास में इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आपके पास में रिटन एग्जाम है, वाइवा है, प्रैक्टिकल है ना, प्रेजेंटेशंस है। इन सब का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेट, डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट होता है ना। और जब फाइनली आप पास आउट करते हो तो आपको एक मार्कशीट मिलती है, उसमें वो क्रेडिट के हिसाब से आपके मार्क्स होते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट वेटेड एवरेज। कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेट देते हैं। और ये देखो, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी सैलरी, एनी स्टॉक मार्केट, दिस इज एवरीवेयर इन योर लाइफ, राइट। आप स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, आप अपने एंटरटेनमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। सो दिस इज एवरीथिंग इज वेटेड एवरेज, है ना। तो अगर हम इसको सिंपल से एग्जाम्पल लेके देखें, सपोज देयर इज वन क्लास, और क्लास में बॉयज हैं, है ना। सपोज देयर आर 40 बॉयज, राइट। एंड इनके जो मार्क्स का एवरेज है वो से 75 है, राइट। क्लास में गर्ल्स है, गर्ल्स सपोज 35 है, और गर्ल्स के जो मार्क्स का एवरेज है वो सपोज 80 है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्लास का एवरेज कैलकुलेट करना है कि क्लास का एवरेज कितना है। तो क्या करेंगे, 40 इंटू 75, राइट। तो क्या किया मैंने, 75 जो नंबर था उसको 40 का वेट दिया, है ना, बिकॉज वो 40 बच्चे, 40 बॉयज का एवरेज है, राइट। ये मैंने टोटल निकाल लिया। सिमिलरली मैंने गर्ल्स का भी किया, 35 इंटू 80, राइट। ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्लास का टोटल सम आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट, 40 तो बॉयज है और प्लस 35 गर्ल्स, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड द वेटेड एवरेज, हमने वेटेड एवरेज निकाली, है ना। अब इसको अगर हम एक जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं, तो कैन आई राइट average is equal to what, n1 s1, right, plus n2 s2, n1 n2 number of boys, number of girls, right, s1 s2 average of boys, average of girls, right, divided by what, this is n1 plus n2, है ना। तो ये मेरा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेटेड एवरेज के लिए, राइट। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, एवरीवन शुड नोट डाउन दिस, और यहाँ से हम अपना क्या करेंगे, हम अपना मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, है ना। सो मिक्सचर एंड एलिगेशन इज नथिंग बट द लिटिल एडवांस वर्जन ऑफ एवरेज, है ना, वेटेड एवरेज का है, ठीक। सो आज तक जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का एग्जाम्पल लिया, राइट। मैंने आपको जो क्लास का मार्कशीट का एग्जाम्पल दिया, राइट। तो वेट हम इसलिए देते हैं बिकॉज सी आस्था इज सेइंग कि व्हाई डू वी डू दिस, राइट। तो हम वेट किसी चीज को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस चीज का इम्पोर्टेंस ज्यादा है और किस चीज का इम्पोर्टेंस कम है ना। जैसे राघव ने बोला कि मैथ्स का एग्जाम है, उसका क्रेडिट ज्यादा होता है, बट आपके जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव्स होते हैं, है ना, तो उनका क्रेडिट कम होता है। कई बार तो ऐसे भी इलेक्टिव होते हैं जिनका इवन जीरो क्रेडिट होता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि वो जस्ट आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, आपका उसमें टेस्ट नहीं करेंगे, वो आपके मार्क्स में काउंट नहीं, है ना। सो दिस इज बेसिकली वेट इज गिवन टू अ, टू गिव अ इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, है ना। आप जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को आप ज्यादा वेट देते हो बिकॉज आप उनकी रेस्पेक्ट करते हो, है ना। तो दिस इज व्हाट, अपने फ्रेंड्स से आप अलग तरीके से बात करते हो, पेरेंट्स से आप अलग तरीके से बात करते हो। ये क्या है, दिस इज व्हाट, वेट, वेट देना किसी चीज को, है ना। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसको अच्छे से डील करते हैं, बट
जो कम इम्पोर्टेंट है उसको हम उतना रेस्पेक्ट नहीं देते, है ना? तो दिस इज व्हाट वेटेड एवरेज. So this is not only related to numbers, right? ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में मार्क्स ले लिए या कुछ ले लिया. This average, see, mathematics is applicable in every aspect of the life, है ना? लाइफ के हर कॉर्नर पे आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, राइट? एंड अगर आप उसको अपने नॉर्मल तरीके से स्टडी करोगे, अपने आसपास रिलेट करके करोगे, तो बहुत सिंपल है. बट अगर आप ये सोचोगे मेरे को तो एक ये सब्जेक्ट रीड करना है, बहुत ही टफ है ना? तो जस्ट रिलैक्स, relate this, enjoy this, and you will get good understanding of the concept, right? Okay, so this is the weighted average, right? But yes, keep this expression with you, right? And इसके ऊपर हम अपना mixture and allegation build up करेंगे, right? But उससे पहले there is a one very very important thing, and this we call as what? Assumed average, right? Now अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आप डेटा इंटरप्रिटेशन है ना? टेबल है, बार ग्राफ है, फाइल है, लाइन है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन Can you क्वेश्चन please repeat? फिर से रिपीट और कर सकते? किस चीज को? मतलब जो एज्यूम एवरेज के बारे में फिर से क्या बोले, मतलब क्या क्या? अच्छा, एज्यूम एवरेज का, ओके. एज्यूम्ड एवरेज के लिए ना, जैसे हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन में सॉल्व करते हैं टेबल्स, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, है ना? पाई चार्ट, जैसे अभी योगेश ने एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट है, सेंसेक्स है ना? तो हम एवरेज निकालते हैं कि किस शेयर का कितना एवरेज प्राइस है. तो ये इस तरह की चीजें हम सॉल्व करते हैं, है ना? बट इसमें क्या होता है कि जब आप सॉल्व करते हो तो नंबर ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है. समटाइम्स लाइक 10, 15, है ना? अब उसको जब मेरे को एवरेज करना है तो हाँ, एवरेज क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ द वैल्यूज, है ना? अब सम मतलब अगर 10 वैल्यू है तो 10 लोगों का सम करना है, 20 है तो 20 वैल्यूज का सम करना है, फिर 20 से डिवाइड करो, है ना? तो ये जो एडिशन करना, एक बड़ा सा नंबर आएगा फिर उसको डिवाइड करो, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना? तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट इज assumed average, right? Suppose there is a one क्या एग्जांपल ले ले, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, है ना? सो सपोज पेप्सी, राइट? आप एक ऑफिस में, एक प्लांट में हो, एक फैक्ट्री में हो पेप्सी की, राइट? एंड यू आर चेकिंग दैट फॉर द ईयर say 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005. आपने 5 साल का डेटा चेक कर रहे हो और आपने चेक किया कि 2001 में 500 बॉटल्स प्रोड्यूस हुए, राइट? सो दिस इज व्हाट डेटा ऑफ प्रोडक्शन, राइट? डेटा ऑफ प्रोडक्शन. तो 500 बॉटल्स प्रोड्यूस हुए, ओके. इन नेक्स्ट ईयर दिस इज 650, ओके ना? या हम और सिंपल लेते हैं, सपोज आए थे 600, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, है ना? देन आई से दिस इज 750, right? Then I say this is say 900, right? Then I say this is something like 12, है ना? कुछ इस तरह का मैंने वैल्यूज ले लिए. नाउ अब मैंने आपसे बोला कि टेल मी फॉर दीज 5 years 2001 से 2005 तक का एवरेज कितना है, एवरेज प्रोडक्शन कितना है. तो क्या करोगे, क्या करें अब इसमें? कितना आ रहा है? ओके 790. लक्ष्य ने बोला 790, राघव ने बोला सम ऑल एंड डिवाइड बाय 5 years. लक्ष्य, हेलो लक्ष्य, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. Hello. हाँ जी,
तो लक्ष्य कैसे आया यहाँ 790? सर सबको ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ ईयर 5 से डिवाइड कर दिया, है ना? हम्म, नाउ बट अगर ये लक्ष्य 5 इयर्स ना होके 10 इयर्स होते तब क्या करते? अब 10 वैल्यूज को ऐड करते, यस सर 10 से डिवाइड करते फिर 10 से डिवाइड करते। अब मान लो अगर 10 ना होते 20 होते तो क्या करते? सर फिर कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाती। लॉन्ग हो जाते है ना, बड़े हो जाते। तो अभी क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एज्यूम्ड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब जैसे अभी हमने किया था कि जो एवरेज है वो क्या है, एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है ना? कोई भी वैल्यू है तो एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव नंबर है ना। जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर होता है या जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होगा, जो आपकी लोएस्ट वैल्यू है उससे ज्यादा होगा और जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है उससे कम होगा, है ना? तो नॉर्मली जो एवरेज है वो मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज में होता है ना? एंड मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो मिडिल वैल्यूज होती हैं उनके ही कहीं आसपास में होता है ना? ऐसा होता ही नहीं होता एवरेज में। बताओ कुछ, हाँ ना, कुछ बताओ। यस राइट, सर। है ना? जो एवरेज होता है वो जो मिडिल वैल्यू है उनके ही कहीं आसपास में होता है और मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम रहता है ना? तो अब मुझे ये करना है, तो एक दो तरीका ये है कि मैं इन सब वैल्यूज को ऐड करूं जैसे अभी लक्ष्य ने किया और 5 से डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा। बट ऐड करना फिर से एक बड़ा सा नंबर, डिवाइड करना बड़े नंबर को डिवाइड करना, एरर के चांसेस ज्यादा है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक अपना एवरेज एज्यूम कर लेता हूँ, है ना? और वो हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास फिगर है उसको देख के ध्यान से करना है। टेक सम नंबर, ऐसा नंबर लो जो आपको मिनिमम कैलकुलेशन के लिए हेल्प करे और कहीं ना कहीं सेंटर के आसपास हो, है ना? तो इसमें सजेस्ट कर सकते हो कि मेरे को क्या नंबर लेना चाहिए, क्या हम एवरेज मान सकते हैं, कितना एवरेज हो सकते हैं? हाँ, 750 ले सकते हैं, राइट? बट देखो 750 मतलब आधा सा हो गया ना, कुछ 750 50 टाइप से, राइट? तो उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि हम क्या करें, अदिति, यस, बट अदिति इतना लंबा रेंज नहीं लेंगे, एक ही नंबर लेना है ना। तो आई सपोज द बेस्ट नंबर फॉर दिस इज 800, है ना? ऐसा लग रहा है थोड़ा सेंटर के आसपास होगा। 600 अगर लेते हो वो थोड़ा सा लोअर साइड में चला गया, है ना? तो 800 मेरे को देख के लगता है कि ना बड़ा ही मतलब सेंटर से में आ जाएगा नंबर, है ना? तो सर कुछ इजी हो ऐसा जाएगा होता है कैलकुलेट। इसमें कि हमें ऑड नंबर ही थोड़ा प्रेफर करना होता है? नहीं, कुछ नहीं, ना ना, नथिंग। हम आप और लो, 700 ले इवन लो, सकते हैं? हाँ 700 ले सकते हो, उसको भी लेके मैं अभी चेक कर लूंगा, डोंट वरी, है ना? आप 700 ले लो, पहले हम 800 को देख लेते हैं फिर 700 को भी देख लेंगे, राइट? डोंट वरी। तो मैंने क्या किया, 800 को अपना एज्यूम्ड एवरेज मान लिया, है ना? अब क्या करना है, जो आपने एवरेज लिया उससे बाकी सारे नंबर्स का ना डिफरेंस निकाल लो विद साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। तो ये कितना आएगा, -300। ये वाला वो जो 800 कैसे निकाले फिर से, मतलब किसका, 800 मैंने रैंडमली नंबर पिक कर लिया, मैंने मतलब कोई देखा भी कि मेरा रैंडमली जो लेके कर हाँ सकते हैं? हाँ ओके। हाँ, कोई भी रैंडमली लेके कर सकते हैं। मैंने लिया, जैसे अभी आस्था ने बोला कि 700 ले लो तो वो भी ले लेंगे अभी, है ना? तो मैंने देखा 500 से 1200 के बीच में जाना है और जो एवरेज होता है वो कहीं ना कहीं सेंटर के आसपास होता है ना? तो मैंने क्या किया, देखा कि यहाँ पे ना जो मिडिल सा नंबर आ रहा है वो 800 के आसपास आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं, है ना? तो रैंडमली थोड़ा सा इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन करके लेना है जिससे कि आपके कैलकुलेशन मिनिमाइज्ड हो जाए। ओके, तो पहला कितना आ गया, -300। ये कितना आ जाएगा, -200, है ना? ये कितना आ जाएगा, -50, है ना? ये कितना आ जाएगा, +100, है ना? और ये कितना आ जाएगा, हाउ मच, +400। ये हो गया। तो इसमें क्या करना है, जो डिफरेंस लोगे ना वो नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है?
अब एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है? सम ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय काउंटिंग ऑफ द नंबर्स। मैंने ये वाले सारे डिफरेंसेस ले लिए। अब आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इनको ऐड करना चाहिए। जब मैंने ऐड किया तो मैंने देखा ये टोटल कितना हो गया? प्लस 500, है ना? और ये टोटल कितना हो गया? माइनस 500। ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। खत्म, इजी। क्या रह गया? -50। अब ये एक डिफरेंस बच गया और ये कितने नंबर्स के लिए? 5 5 ईयर्स का डेटा है ना, 5 नंबर्स के लिए। तो क्या करेंगे? -50 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। कितना आ गया? -10, है ना? मैंने एवरेज अपना कितना एज्यूम किया था? 800। उसमें मुझे कितना एडजस्टमेंट करना है? -10 का। तो मैंने क्या किया? -10। मेरा एवरेज कितना आ गया? दिस इज 790। आई थिंक यही आंसर आ रहा है सबको। यस, राइट। अब ये देखो, अगर हम एज्यूम्ड एवरेज लेके चल रहे हैं, है ना, तो देखो कैलकुलेशंस कितने सिंप्लीफाइड हो गए, है ना? वो जो पहले हम 5 नंबर्स को ऐड कर रहे थे, फिर 5 नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे, है ना? यहाँ पे जब मैंने साइन के साथ में लिया, प्लस माइनस साइन के साथ में लिया, तो वो सारे नंबर मेरे कैंसिल आउट हो गए। सिंपल सा एक नंबर बचा और जिसको हम इजीली वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब एक बार आस्था का भी, आस्था, हेलो। सर आ गया मेरे को समझ 700 से +10 आएगा और फिर उसके बाद हम 700 से नहीं हाँ, गलत ठीक है प्लस 10 नहीं आएगा नहीं नहीं उसमें ना। +10 नहीं आएगा सॉरी चलो हाँ मैं एक बार समझ कोई गई बात हूँ नहीं, वैसे कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व करें, बताओ। ठीक है सर आप कर लो ओके, चलो तो सॉल्व कर लें। नाउ अभी क्या करते हैं? वी आर टेकिंग अ एवरेज 700, राइट? एज्यूम्ड एवरेज। ओके, अब ये वाला जो नंबर है, ये कितना आ जाएगा हमारा? यस, -200, है ना? ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? -100, राइट? ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? यस दिलकश, तो वही कर रहे हैं। जो 700 है ना, उससे जो नीचे वाले नंबर हैं वो माइनस में चले गए, जो ऊपर वाले नंबर हैं प्लस में आ गए। तो अब 750, राइट? 700 आकाश, 150 नहीं आएगा। ये कितना आएगा? +50, राइट? ये कितना आएगा हमारा? +200, है ना? और ये कितना आएगा मेरा? यस, हाउ मच? +500, है ना? अब ये देखो, मुझे क्या करना है? 5 नंबर आ गए, उनको ऐड करना है, राइट? कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। +200 -200, ये तो चला गया, ठीक है। इसको देखते हैं, -100 +50, कितना बचेगा? -50, राइट? -50 एंड +500, कितना आ गया फाइनली हमारे पास में? यस, कितना आ गया? 450। 450 डिवाइडेड बाय कितने नंबर? 5 5 नंबर, है ना? 90 कितना आना चाहिए? +90। तो मैंने इसमें एवरेज 90 ऐड कितना हो लिया था जाएगा। आपने? इसमें 90 ऐड हो जाएगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है? पहले मैंने थोड़ा सा ज्यादा एज्यूम कर लिया था तो मुझे डाउन जाना पड़ा। अभी मैंने कम ले लिया, मेरे को ऐड करना है +90। मेरा आंसर कितना आ गया? 790, राइट? डन, गॉट इट। तो अभी देखो, अभी हमने क्या किया आज? सबसे पहले एवरेज, राइट? तो जो बेसिक फंडामेंटल है ना, वो सारा एवरेज पे है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द काउंटिंग ऑफ द, राइट? और यहाँ पे हम अभी सिंपल अरिथमेटिक एवरेज की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक एवरेज या हार्मोनिक एवरेज अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट? नाउ इसके बाद में एवरेज हमने लिया, उसमें देखा कि हम कैसे शॉर्टकट तरीके से बिना लिखे हुए, बिना कैलकुलेटर के अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? अगर आपका एवरेज से ज्यादा है या आपका एवरेज से कम है ना? डन।
देन उसके बाद हमने देखा वेटेड एवरेज क्या करेंगे। तो वेटेड एवरेज में जो मैंने आपको बोला कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको बस अच्छे से याद रखना, नोट डाउन कर लो, और इसी से हम आगे कहाँ जाएंगे, मिक्सचर एलिगेशन पे जाएंगे। ओके, नाउ देन इसके बाद फिर हमने क्या किया, एज्यूम्ड एवरेज, राइट। एंड एज्यूम्ड एवरेज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब भी आप टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, है ना, तो वो लाइन ग्राफ अगर आपका जिगजैग लाइन ग्राफ जा रहा है तो आप उसमें आराम से कैलकुलेट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा इसमें ना एज्यूम्ड एवरेज कितना होगा। पाई चार्ट है, तो ये सब चीजों में आपको बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो दिलकश देखो, साइन जो प्लस माइनस हमें लेना है ना, आपने जो भी एवरेज एज्यूम किया है ना, जो भी एवरेज एज्यूम किया है उससे जो नीचे वाले नंबर होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, और उससे जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो प्लस साइन के साथ आएंगे। जैसे मैंने 800 लिया, तो 800 में 500 कम है, -300, 600 भी कम है, -200, 750 भी कम है तो -50, राइट। अब जब मैंने 700 लिया तो देखो 750 क्या हो गया, मेरा बड़ा नंबर हो गया, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्या लिया, +50, है ना। गॉट दिस? यस यस। तो जो क्वांटिटी है, यस आकाश, है ना, बट इतना जो है हम टेक्निकल टर्म में नहीं जा रहे हैं कि क्वांटिटी माइनस एज्यूम्ड एवरेज, राइट। सिंपल सा देखो, जो भी आपका एवरेज है, जो आपने नंबर एवरेज माना है, एज्यूम किया है, उससे जो छोटे नंबर है वो माइनस में जाएंगे और जो बड़े नंबर है वो प्लस में जाएंगे, राइट। सिंपल, राइट। हम चीजों को ना, कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इजी रखेंगे जिससे समझने में आसानी हो, और एग्जाम में जब जाए तो वहां भी इजीली उनको सॉल्व कर पाए, राइट। सो this is till the assumed average, and in the next session, right, we will be moving for what, mixtures and allegation, right. So next session में हम mixture and allegation पे move करेंगे।